Welcome, students. Welcome you all in the class of our population ecology. In the last class of our population ecology, we had studied the age structure, the demographic features of the population, as well as we had also studied the life history traits of population. Population generally shows two different type of life histories. One is called as simulparous type of life history, and other is called as uteroparous type of life history. And with that, we had also studied the survivorship curves found in populations. Three different type of survivorship curves were actually observed during the population studies. That is, and these were actually type 1 curve, type 2 curve, and type 3 curve. Now we will move ahead, and as you can see in this slide, our next topic is R and K selection. Actually, this concept was given by MacArthur's, and in ecology, R and K selection relates to the selection of combination of traits in an organism that trade off between quantity and quality of offspring. The focus upon either increased quantity of offspring at the expense of individual parental investment of R strategist, or reduced quantity of offspring with a corresponding increased parental investment of K strategist varied widely, seemingly to promote success in a particular environment. So it was actually produced by Arthur and Wilson in 1970. Again, this R and K selection is based on the reproductive strategies of the populations. uh, it will be more easier because we had already studied the life history traits, so R and K selection would be more easier to understand. uh, as I mentioned earlier, that the populations on can be categorized into paris type of population or heteropares population. If we focus on the on the reproductive strategies of simulparous population, then we will find that simulparous populations actually, the individuals of simul which belongs to simulparous populations reproduce only once during their lifespan, and so their parity is low, that is parity is 1, and they invest and they allocate their maximum energy in that single reproductive event, and hence they produce many offsprings. But there is very little parental care, or we can say there is no parental care. So our selected populations are those populations here. हालांकि with these reproductive strategies, there are some other factors also which we will study in our next slide. But the main concept of our selected populations are those populations whose reproductive strategy includes maximum production of offspring during a single reproduction and no parental investment. While in the case of K selected populations, these populations reproduce multiple times during their lifetime. Their parity is more multiple times, but during the single reproductive event, they produces only fewer offspring, very few offspring. So their clutch size is small, and due to their small clutch size, parental investment, or we can say the parental care is more extensive in this case. So these are some correct. These are the actually differences between the R selected population and K selected population. Here, the small R actually represents the biotic potential of the population, or we can say their biotic potential means the potential of any population to produce offspring. So their biotic potential is maximum. They can produce as many as offspring as the potential lies inside them, or the potential lies in the population itself.
While in case of K selected population, though their biotic potential is more as compared to their actual number of offspring they actually produces, but still वो अपने बायोटिक पोटेंशियल के हिसाब से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन कम करते हैं. So that's why R term is used in to describe R selected population, and R selected populations are actually the population of insects and annual plants like annual plants, seasonal plants, uh, where well in case of K selected population, the K term actually describes the carrying capacity of the population. So we will discuss these two terms later in our population ecology, but you can see some major characteristics. Our selected populations are unpredictable, uncertain. They are found in actually uncertain environment. The environment is highly disturbing. कभी भी एकदम से, for example, like in case of tropical rainforests are actually we can say are hotspots for our selected populations, because the environment is very variable in case of tropical rainforest. एकदम से कभी बारिश हो जाना, एकदम से कभी तेज हवा चल जाना, so temperature में और या light में, so there is lot of variation in case of ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट. कहीं एकदम लाइट से पेनिट्रेट कर रही है सीधी अर्थ पर, कहीं पर नहीं कर पा रही क्योंकि ड्यू टू कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट. तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स है. सो आर सेक्टर पॉपुलेशंस आर वो बिल्कुल एकदम फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट में पाई जाती है. सो दे आर फाउंड इन फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट. द मोर्टेलिटी ऑफ आर सेक्टर पॉपुलेशन इज मैक्सिमम, और द मोर्टेलिटी, और वी कैन से द मोर्टेलिटी इज मेनली ड्यू टू एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशन. ज़्यादा उनके कारण नहीं है कि उनके इंट्रेंसिक कुछ कारण फैक्टर्स हो सकते हैं. जबकि हम कंपेयर करें के सेलेक्टेड पॉपुलेशन को विद आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन, द के सेलेक्टेड पॉपुलेशन आर मोर और लेस फाउंड इन a stable environment conditions. Their mortality rate is low as compared to R selected population, and they show K selected population show density dependent growth, while R selected population show density independent growth. Density independent growth means the mortality or their growth doesn't depend upon their own population density. The mortality and the growth actually depends upon the environmental conditions. If environmental condition is favorable, they will proliferate. If environmental condition is not favorable, actually they will be eliminated. While in case of case selected populations, their growth is actually depend upon density. अगर उनकी खुद की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उनके बीच में रिसोर्सेज की लिमिटेशन होगी, रिसोर्सेज लिमिटेशंस होगी, तो दे विल compete for the resources, and this particular reason will lead to the mortality of some individuals, and ultimately mortality rate of the population will increase. फर्दर अगर हम ये देखें तो आर सेक्टर पॉपुलेशंस आर एक्चुअली दोज पॉपुलेशन विच जिनका लाइफ जो स्ट्रेटजी है या जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स है वो सिमल्पेरस टाइप का होगा. जबकि जो के सेलेक्टेड पॉपुलेशन है उनका लाइफ हिस्ट्री जो होगा वो इट्रोपेरस टाइप का होगा. तो आर सेक्टर पॉपुलेशन का लाइफ हिस्ट्री जो सिमल्पेरस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने जीवन काल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, उनका जो पैरिटी है वो सिंगल ही होगा, उनका क्लच साइज बड़ा होगा, उनमें किसी भी प्रकार की पेरेंटल केयर नहीं होगी, और उनका जो लाइफ स्पान है वो काफ़ी छोटा होता है, शॉर्ट होता है. जबकि अगर हम के सेलेक्ट की बात करें तो ये ऐसी पॉपुलेशंस हैं जिनका जो पैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्लच साइज छोटी होगी, और इनका जो पेरेंटल केयर है वो एक्सटेंसिव काफ़ी हद तक होगा. पेरेंटल केयर उनके अंदर मौजूद रहेगा, और उनका लाइफ स्पान भी लॉन्ग रहता है. जैसे कि, और अगर हम सर्वाइवरशिप कर की बात करें तो बेसिकली जो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर जो पॉपुलेशंस फॉलो करती हैं, दे आर एक्चुअली आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन, वाइल द पॉपुलेशंस विच फॉलो टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स आर एक्चुअली के सेलेक्टेड पॉपुलेशंस. So this is again this slide is again showing the some differences between the R selected population and K selected populations. As I mentioned, the climate is unpredictable in case of R selected because the climate is rapidly changing, or we can say fluctuating environment conditions. The selection favors rapid development, slow development, early reproduction, delayed reproduction, small body size. Yes, the R selected populations individuals generally have small body size,
while the case selected populations generally have large body size. For example, you can consider mammals. In case of case selected population, they produce many offspring, but the cluster size is large in case of R selected, and cluster size is small in case of case selected. Further, if we talk about the length of life, that is lifespan is short in case of R selected, and the lifespan is long in case of case selected, more than 1 year, and more than less than 1 year in case of R selected, more than 1 year in case of case selected populations. स्टेजेस इन सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कम्युनिटी रिप्लेसमेंट होता है एक ही जगह पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम. So one community is replaced by another, and so on until and unless a final or a stable community arises in that particular geographical area. So there are different stages of succession, and these stages are actually called as serial stages, or we can say finally last में जो आता है वो climax stages. तो जो अर्ली स्टेजेस होती हैं सक्सेशन की, एक्चुअली दे आर कॉलोनाइज्ड बाय आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन, एंड द लेटर stages of the case of the community succession is actually more or less is mostly colonized by case selected populations. So after studying the concept of R and case selected populations, now we will move towards the last topic of our population ecology, and which is the most important as well of topic of this population ecological studies, is actually to the study of population growth. And population growth can be studied by two different kinds of models, that is called as population growth model. One type of growth model is called as exponential growth model, and another growth model is called as logistic growth model. Exponential growth model is actually an ideal model of population growth, while the logistic growth model is actually the realistic model of population growth. Naturally, there is no population, or we can say there is no Mendelian population on this planet Earth which follow exponential growth model. Exponential growth model can be achieved in laboratory conditions only. इट कैन नॉट बी अचीव्ड इन नेचुरल कंडीशंस. कहना मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है, एक जो कि हम प्राकृतिक रूप में कभी भी किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल नहीं पाई जाएगी. ये प्रयोगशाला के अंदर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं. कुछ सर्टेन कंडीशंस को हम कंट्रोल करके हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को अचीव कर सकते हैं. जबकि वास्तविकता में जो ग्रोथ मॉडल सभी पॉपुलेशंस, चाहे कोई सी भी प्रजाति की हो, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, अगर उन पॉपुलेशंस की हम स्टडी करेंगे तो जो ग्रोथ मॉडल हम पाएंगे उसे हम कहेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. पर इसमें कुछ बुनियादी फ़र्क है, और ये क्या डिफरेंसेस हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर, ये हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम इनके बीच के अंतर को समझ सकें. पर हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल को पढ़ने से पहले हमें एक जनरल इक्वेशन प्राप्त करनी होगी पॉपुलेशन ग्रोथ की. सो वी मस्ट फाइंड आउट द जनरल इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हैं, आपको इन्हें समझना होगा. सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल बी. कैपिटल बी मतलब इज इक्वल टू एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बर्थ इन पॉपुलेशन. कैपिटल बी यहाँ दर्शाएगा कि वास्तविकता में पॉपुलेशन में कितने नए इंडिविजुअल्स का जन्म हुआ. जैसे मान लिया कि एक वर्ष में किसी एक पॉपुलेशन में उस क्षेत्र के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें 100 नए जीवों का जन्म हुआ, तो हम कहेंगे कैपिटल बी इज इक्वल टू 100. इस तरह से डी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ दैट इन दैट पॉपुलेशन, कि उसी पॉपुलेशन के अंदर एक वर्ष के अंदर मान लिया कि 50 जीवों की मृत्यु हुई, कुल 50 जीवों की, तो हम कहेंगे डी इज इक्वल टू 50. एन यहाँ पर दर्शाएगा, कैपिटल एन यहाँ दर्शाएगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन. यह अपन कहें कि उस पॉपुलेशन की साइज क्या है, कि मान लिया उस दिए गए क्षेत्र के अंदर 10,000 इंडिविजुअल्स रहते हैं उस जो कि उसी एक ही प्रजाति के सदस्य और उस जगह पर रह रहे हैं जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, तो एन विल बी इज इक्वल टू 10,000. एंड डी एन अपॉन डी टी ये बताएगा कि जब हम उस पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो
कितना चेंज उसकी साइज में हुआ है, तो हम उसे डी एन बटा डी टी कहेंगे। ये क्या बनाया? So this is called as change in size of the population in a given time period। मान लिया कि 2016 के अंदर पॉपुलेशन की साइज थी 10,000 इंडिविजुअल और 2017 के अंदर हो गई 11,000, तो चेंज इन साइज कितना हुआ? 1,000। तो दैट डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू 1000। डी एन मतलब चेंज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन और डी टी मतलब इन द गिवन टाइम पीरियड, दैट इज 2010 to 2011, just 2016 to 2017। सपोज अब हम इस जनरल इक्वेशन के लिए हम मान के चलते हैं, हम एक ह्यूमन पॉपुलेशन को मान के चल रहे हैं कि सपोज एक ह्यूमन पॉपुलेशन है 1,00,000 की। मान लिया कोई शहर है, एक कस्बाई इलाका है और वो कस्बाई इलाका 1,00,000 पॉपुलेशन का है। मान लेते हैं हम उस कस्बाई पॉपुलेशन दूसरे कस्बों से बहुत दूर है, एक आइसोलेटेड है, हालांकि माइग्रेशन होता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मान लिया कि ह्यूमन पॉपुलेशन 1,00,000 की है और उस 1,00,000 की पॉपुलेशन में एक साल में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बर्थ हो रहा है 1,000, कि एक साल में 1,000 नए ह्यूमंस पैदा हो रहे हैं और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ जो है वो डी है 500, मतलब एक साल के अंदर 500 ह्यूमंस की डेथ भी हो रही है। तो इसका मतलब चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन इन 1 ईयर विल बी डिस्क्राइब्ड एज डी एन बटा डी टी। जैसे हमने बताया कि हमें अब देखना है कि उस एक वर्ष में ह्यूमन पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ है, उसकी साइज में कितनी चेंज हुई है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी एन बटे डी टी। और डी एन बटे डी टी कैसे करेंगे? डी एन बटे डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी, जिसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। और ये कैसे होगा कि उस साल में कितने नए इंडिविजुअल्स पैदा हुए और कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई। तो बी जो कि 1,000 था और डी जो कि 500 था, तो 1,000 माइनस 500 बराबर 500। तो 500 नए इंडिविजुअल जुड़े और पूर्व में क्या साइज थी एन की? 1,00,000। तो अब जो वास्तविक साइज हो गई एन की एक साल बाद हो गई 1,05,000। बट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज ऑफ डिफरेंट रीजन्स counting absolute number of birth and absolute number of death is tedious work. So population ecologists use general rate of birth and death per capita, that is per capita birth rate and per capita death rate। मान लिया अपने कि अभी ये जो स्टडी करी जिसमें हमने एक वर्ष के अंदर उस पॉपुलेशन की साइज का आकलन किया, और मान लिया वो एक क्षेत्र कोई एक शहर था। अब हम किसी दूसरे शहर पर पॉपुलेशन स्टडी करना चाहते हैं, तो वास्तविकता से वापस हर एक साल तक आप वेट करो कि वहाँ कितने इंडिविजुअल्स की बर्थ हो रही है, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, तो ये बड़ा एक लंबा और एक कठिन कार्य हो जाएगा। बजाय इसके हमें एक औसत दर निकालना है कि इस दर से ह्यूमंस, क्योंकि जैसे मान लिया एक क्षेत्र के अंदर अगर ह्यूमंस जो कि 1,000 पैदा हो रहे हैं और 500 अगर उनकी डेथ हो रही है, तो और मेरे उसके हिसाब से उस दूसरे क्षेत्रों में भी वही एक औसत दर रहेगी। तो एब्सोल्यूट नंबर, एक्चुअल नंबर काउंट करना कठिन है, बजाय हम एक औसत दर निकाल लें, किस दर से नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं और किस दर से पुराने इंडिविजुअल्स जा रहे हैं। तो आसानी से हम दूसरी जगहों की ह्यूमन पॉपुलेशंस की भी उनकी ग्रोथ की स्टडी कर सकते हैं। तो उस एब्सोल्यूट नंबर को हम कह रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। तो बर्थ रेट को तो हम कहेंगे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे और डेथ रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। और ये क्या होगी? b इज इक्वल टू स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल B अपॉन कैपिटल N। तो बर्थ रेट क्या होगी? जैसे मान लिया टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितना? 1,000 और N कितना? 1,00,000। तो 1,000 बटे 1,00,000 हो गया 0.01। तो ये एक औसत दर होगी बर्थ की उस पॉपुलेशन में। इस तरह से हमने औसत दर निकाली डेथ की, दैट इज़ 500 बटे 1,00,000 जो कि 0.005। अब ये रेट हम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मोटे तौर पर दूसरी जगहों पर भी, या हम कहें और डी एन बटे डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी। सिंस बी, अब बी को कैपिटल बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू स्मॉल बी इंटू एन, और इसी तरह से हम कैपिटल डी को भी स्मॉल डी इंटू एन लिख सकते हैं। और कैपिटल बी की ये जो वैल्यू है और कैपिटल डी की ये जो वैल्यू है, अब इसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, दैट इज डी एन डी टी
डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, पहले जो था वो बी माइनस डी था, कैपिटल बी माइनस डी, तो कैपिटल बी की जगह रख लिया बी स्मॉल बी इंटू एन माइनस स्मॉल डी इंटू एन, इस तरीके से लिख लिया। और चूंकि ग्रोथ रेट जो होती है, वृद्धि दर, किसी भी पॉपुलेशन की वृद्धि दर क्या होगी, उसकी जन्म दर माइनस मृत्यु दर। सो आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, जहाँ आर क्या, ग्रोथ रेट। तो अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो डी एन बटे डी टी वाली इक्वेशन है, डी एन बटे डी टी इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन। तो ये एक हो गई उस पॉपुलेशन की एक्चुअली ग्रोथ इक्वेशन, कि कोई भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है डी एन बटा डी टी, वो किस पे, वो क्या होगा, इज इक्वल टू आर इंटू एन। या आप इसको और तरीके देख सकते हैं, डी एन बटा डी टी इज इक्वल टू आर एन। अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को दर्शाता है, ऐसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को दर्शाता है जो एक अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में पाई जाती है, विच इज फाउंड इन एन अनलिमिटेड एनवायरनमेंट। हियर अनलिमिटेड एनवायरनमेंट मीन्स अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो रिसोर्स लिमिटेशन, देयर इज नो कंपिटिटर, कि उस पॉपुलेशन के लिए वहाँ पर प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। संसाधन मतलब आवास से है, हैबिटेट है, उनके भोजन से है, उनके पानी से है, उनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड है, और उनका कंपिटिटर, कोई कंपिटिटर नहीं भोजन के लिए, कोई कंपिटिटर नहीं है मेटिंग के लिए, कोई उनको किसी से खतरा नहीं है, किसी शिकारी से खतरा नहीं है, कोई प्रीडेटर नहीं है। तो ऐसी एनवायरनमेंट को हम कहेंगे आइडल कंडीशन। और जब ऐसी आइडल कंडीशन किसी भी पॉपुलेशन को दी जाएगी तो वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट पोटेंशियल से वृद्धि करेंगे। तो मीन्स जब ये कंडीशन होगी तो उस पॉपुलेशन में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होगी, और वो अपनी जो नैसर्गिक, जो स्वाभाविक जो उनकी क्षमता है, उस क्षमता से वो वृद्धि करेगी, जिसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो उनका जो आर जो होगा, उसमें जो ग्रोथ रेट वो उनका मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पर हम उस आर को आर मैक्स कहेंगे, और उस आर मैक्स को हम कहेंगे बायोटिक पोटेंशियल। So in this condition, population will grow exponentially and its intrinsic growth rate, जिसको हम बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे, will be maximum। और जब इसका हम कर्व देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का, तो वो एकदम जे शेप्ड कर्व होगा। जैसे मान लिया एक एक्सिस पर तो हमने लिया पॉपुलेशन साइज, वाई एक्सिस पर, और समय के, और एक्स एक्सिस पे लिया समय। ये समय के हिसाब से देखते हैं पॉपुलेशन की साइज में क्या होगा। मान लिया कुछ 4 या 5 इंडिविजुअल्स लिए हिरण के, है ना, जिसमें कुछ मेल है, कुछ फीमेल भी हैं। उनको हम एकदम किसी एक नई जगह पर जाके, एक नए वन में जा कर के उनको कॉलोनाइज करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। तो शुरुआत में तो उनकी वृद्धि जो होगी स्लो होगी। जो नीचे आपको देख रहा है, जिसे लेग फेज कहा जा रहा है, दैट इज पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ, एंड ड्यूरिंग दिस ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि वहाँ पर वो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। पहले तो वो नई जगह पर उस जगह को समझेंगे, वहाँ के वातावरण को समझेंगे, उसके हिसाब से अनुकूलित होंगे, और एक बार जब उस वातावरण में वो ढल गए, फिर वो मैक्सिमम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। क्योंकि वहाँ वो वातावरण है जहाँ प्रचुर मात्रा में उनके लिए भोजन उपलब्ध है, ना ही उनका कोई शिकारी है, हर तरह की चीज़ उनको उपलब्ध की जाएगी, तो वो रिप्रोड्यूस अपनी पूरी क्षमता से करेंगे, और फिर एकदम से जो कर्व है वो एकदम से सीधा बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे। और इसका मतलब आफ्टर एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल, इसलिए अपन कर रहे हैं जे शेप का। पर वास्तविकता में ये चीज़ संभव नहीं है, कहीं भी नेचुरली ये चीज़ संभव नहीं है। इस तरह से मान लिया अगर एक लेबोरेटरी कंडीशन में हमने एक पेट्री प्लेट के अंदर हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रो कराना चाहते हैं, तो हम जब उसको इनिशियल में जो हम इनोकुलम रहेंगे, उसमें कुछ अमाउंट, कुछ स्मॉल फ्यू नंबर के बैक्टीरियम सेल्स होंगे। फिर जैसे जैसे हम उनको रिसोर्सेज देंगे मीडियम के माध्यम से, तो वो उनकी कॉलोनी पूरी तरह से एक्सपांड होगी, पर उसकी, और वो जो एक्सपांशन होगा वो समय जे शेप टाइप होगा। इसलिए इनकी जो इक्वेशन है वो होती है डी एन बटा डी टी इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एन। दिस इज द equation for exponential growth model. Now second one is logistic growth. Now this logistic growth model is actually the population growth model which is found in real condition or in actual condition for all type of organisms which are
uh, living in the living. So it explains growth in real condition, that is in challenging environment, resource limitation, competition. तो वास्तविकता में देखा जाए तो हर पॉपुलेशन को कई चीज़ों से जूझना पड़ता है, एनवायरनमेंट से जूझना पड़ता है। कई बार एनवायरनमेंट बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तेज़ हवा चल गई, तेज़ बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया। कई बार संसाधनों की कमी हो जाती है, जैसे पानी नहीं है, भोजन की कमी हो गई, ऐसे समस्या से जूझना पड़ता है। उनको कम्पीट करना पड़ता है उनके राइवल से भोजन के। जैसे मान लिया कि अगर कोई शेर चीता है और पैंथर है, तो वो चीता पैंथर उनका चूँकि निशे एक कॉमन है, उनका स्वभाव भोजन स्वभाव एक जैसा है, तो वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। मान लिया दोनों का पसंदीदा आहार अगर हिरण है, तो उन दोनों उसके लिए वो दोनों लड़ेंगे। तो देयर इज कंपटीशन है, भोजन के लिए भी और खुद को बचाना भी है, उनके प्रीडेटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी का, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैरिंग कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरमेंट एंड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन एन एनवायरमेंट कैन अकोमोडेट। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का में जो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक हो सकती है, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर कैरिंग कैपेसिटी से अगर ज़्यादा हुई तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है उस केस के अंदर। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र के अंदर कितने इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन के रह सकते हैं। जैसे अगर हम इसको साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, मान लिया कि एक वन क्षेत्र लिया अपन ने, जैसे मान लिया 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का, 300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का एक वन क्षेत्र है, जिसके अंदर हमने 4 टाइगर रखे हैं। दैट 4 टाइगर इज एक्चुअली टाइगर पॉपुलेशन। अब वहाँ पर उन 4 टाइगर जो वहाँ पे है, वहाँ पर करीबन 10,000 से भी अधिक हिरण या दूसरे जो शाकाहारी पशु हैं। ठीक है, एक दूसरा एरिया लिया, वन क्षेत्र लिया, जिसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर के हम मान लेते हैं कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। एक पहले कहा था 300 स्क्वायर किलोमीटर और वहाँ लिखा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। उन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मान लिया करीबन 20 टाइगर हैं, और उस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लाखों से अधिक हर्बीवोर्स हैं। तो उस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पॉपुलेशन टाइगर की बढ़ सकती है, क्योंकि एरिया बड़ा है और रिसोर्सेज बहुत, संसाधन बहुत अधिक है। तो उस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर अगर अपन ने कहा कि 20 टाइगर्स मौजूद हैं, पर वो 20 टाइगर्स हम 300 स्क्वायर किलोमीटर वाले में नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो क्षेत्रफल भी कम है प्लस रिसोर्सेज भी कम है। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन की जो साइज है अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लिया कि एक वन क्षेत्र 300 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में अधिकतम 5 टाइगर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर रिसोर्सेज की जो लिमिटेशंस है वो एक पर्टिकुलर है। जैसे मान लिया उस 300 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कुछ हज़ार ही हर्बीवोर्स है, और अधिक पॉपुलेशन होगी, 5 अधिक होगी, तो पॉपुलेशन के लिए क्या है कि भोजन की कमी होगी और वो आपस में लड़ेंगे। जबकि जहाँ ज़्यादा है रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वहाँ वो ज़्यादा रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो वो ज़्यादा पॉपुलेशंस को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए जो कैरिंग कैपेसिटी है वो दूसरे वन क्षेत्र की अधिक होगी टाइगर्स के लिए। जहाँ पर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो वहाँ पर हो सकता है अधिकतम 100 टाइगर्स भी हो, तो हो सकता है मैक्सिमम 100 हो। जबकि जहाँ 300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो हो सकता है उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी 10 टाइगर्स की हो सकती है। तो यहाँ पर हमेशा एक सिग्मा मॉडल करवाएगा। वही बात, शुरू की जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी, फिर बाद में एकदम से जब वो पॉपुलेशन अडेप्ट हो जाएगी उस एनवायरनमेंट में, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। फिर बाद में ग्रोथ एकदम आप देखेंगे समय के बाद एकदम कांस्टेंट हो जाएगी। वो कांस्टेंट ग्रोथ मतलब कि वह पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है। कि जैसे हो सकता है कि इसके अंदर 300 स्क्वायर किलोमीटर वाले के अंदर अपने क्या कि 10 टाइगर की पॉपुलेशन है, n=10, उससे अधिक नहीं जाएगी। इस तरह से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हो सकता है कि 100, जब तक 100 नहीं तब तक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पर जैसे ही 100 होगी फिर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। सो एट के हम कह सकते हैं कि जब के आ जाएगा तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है आर वो 0 हो जाएगी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट उस समय बराबर हो जाएगी।
सो हियर डी एन बटे डी टी इज इक्वल टू आर एन अपॉन के माइनस एन। तो यहाँ पर इसकी जो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर जो पॉपुलेशन की जो इक्वेशन है, ग्रोथ इक्वेशन, वो कुछ इस प्रकार होगी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन और के माइनस एन अपॉन के, वेयर के इज द कैरिंग कैपेसिटी, आर इज द ग्रोथ रेट। थैंक यू।